warm regards to all of the youth present here in this beautiful evening. We come together to meet our God and express our fellowship in the name of our Jesus. Today I would like to tell you a story about a brave young boy named David and treble giant named Goliath. David was a son of a Samuel who was anointed at the age of 15 by God. Since he anointed, God's spirit is always with David. During that time, there are battle going on between the people of Israel and Philistines. One of the Philistine Goliath was a 9 feet tall and it is impossible to fight with them. Even the king of that time, King Saul, also afraid to fight with them. But David got the courage and went down with shepherd's staff to fight with the Goliath. David ran towards Goliath and put stone in his slingshot and deeply hurt its forehead of a Goliath. Surprisingly, Goliath fell to the ground and David won a great victory on Israel. David saved whole Israel from Philistines. Like us, youth, what do you think? What saves the David? His immense courage and his belief on Almighty God help him to save whole Israel from Philistines, dissipate his age. Like this, we have faith in Christ and believe on God, move forward no more what's the situation, and worship our God with a whole heart. Now let's start meet with a small prayer. I will ask Brother Kamlesh to come up and pray. Welcome all of you who are sitting in front of me and the one who are in the Facebook Live. Before we are starting with the session, let's start with a short prayer. For that, let's close your eyes. We are going to pray. Heavenly Father, thank you for this beautiful day. We gather together to praise and raise your name. Lord, whatever we have done, whatever you ask for, the results are so much greater than we ever could imagine. Even in the failure times, you blow us away with your faithfulness to provide what we need. Our prayer today is that your will be done through this event. Steer our intention to align. Even in the failure times, you blow us away. Keep us physically safe and guide our hearts and the mind from pride and the selfishness. Keep love at the forefront of our minds today, Father, and the guiding lights for all we set out to accomplish and to celebrate. I made this prayer in the Jesus' name. Amen. Praise the Lord, Gospel Vibrants. Are we excited for today's worship? Yes. So let's start with our today worship.
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। सभी मिलकर तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। किसे आइए तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। हाथों को उठाकर आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। सभी मिलकर हाथों को उठाकर पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। अपने आवाज को उठाकर पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। सभी मिलकर तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। किसे आइए आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। सभी मिलकर शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। फिर से सभी मिलकर शुद्ध जल
सजदा तेरे सामने झुकते सजदा करते। अपने स्थानों पे खड़े होकर आत्मा सच्चाई से आराधना करते। संपूर्ण हृदय से आत्मा सच्चाई से आराधना करते। Come on, gospel vibrate. आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हाले हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को लहराकर हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू पवित्र, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। यीशु पवित्र, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। यीशु गॉस्पेल वाइब्रेंट्स कितने दिन विश्वास करते हैं वो हमारा दावीद जो गोलियत को सिर पर मार के गिरा गया था, क्या उसके भरोसे ने किया था? क्या उसने अपने खुद के दम पर किया था? तो मैं आपको बता दूं, दावीद ने अपने दम पर नहीं, खुद के भरोसे से नहीं, परंतु परमेश्वर के हौसले से किया था, परमेश्वर की मदद से किया था। कितने दिन विश्वास करते हैं आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम परमेश्वर की कृपा से खड़े हैं। हालेलुया। तो मिलकर सभी मिलकर हाथ को उठाकर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। दान बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। दान बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है।
आता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हाथ उठाकर सभी मिलकर अपने हाथों को उठाकर हालेलुया।
God's grace, we had such a beautiful and anointed worship by Sankentu brother. Now I will request Pastor Elvin to come to the stage and preach word of God. हालेलुया। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। Greetings you all in the wonderful name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महान नाम में आप सभी जवान बच्चों का और खास इस लाइव में हमें देखने वाले जितने लोग हैं, आप सभी का मैं मसीह वंदना करता हूँ। हालेलुया। अच्छी आराधना परमेश्वर ने हमारे जवानों के जरिए दी। आइए बच्चों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। आमेन। आगे के समय कोई बच्चा इधर उधर ना देखे, अपना पूरा मन, अपना पूरा फोकस प्रभु के वचन की ओर हम लगाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन में अपना पूरा मन लगाकर बैठेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को मिटाना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह और शक्ति आपके अंदर डालना शुरू करेंगे। आमेन। आइए बच्चों, लेट्स ओपन अवर बाइबल, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। इब्रानी पुस्तक उसके 11 की 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। 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 बच्चों, आज इस वचन को सुनने के बाद आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस टॉपिक में आज हम वचन सुनने जा रहे हैं, है ना? यस, इट्स द फेथ इन क्राइस्ट। आमेन। आज का विषय है फेथ इन गॉड और फेथ इन क्राइस्ट, एक विश्वास जो हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आमेन। हालेलुया। हमने तमाम विश्वास सुना है। हमारे अंदर भी एक विश्वास है कि हमारे यीशु मसीह 2021 साल पहले कालवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया, तीसरे दिन जो वो जी उठे। आमेन। यही हमारा विश्वास है, वो खुदा जी उठे हैं, इसलिए ये कलीसिया बना है, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं। अगर यीशु जी नहीं उठते तो संकेंदु इधर आराधना करता, वो सब वेस्ट होता था। आमेन। यीशु मसीह जी नहीं उठते तो आज मेरा इधर खड़े रहना, प्रभु का वचन बांटना व्यर्थ होता था। आज स्नेहा का बाइबल रीडिंग करना व्यर्थ होता था। आमेन। लेकिन हम सब गर्व से कहना है, हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ इसलिए आराधना कर रहे हैं क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है। वो यीशु आज इस मंदिर में खड़ा है। आमेन। वो यीशु का आत्मा मेरे घर में मौजूद है, वो यीशु का आत्मा मेरे क्लासरूम में, मेरे ऑफिस में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे बच्चों, आज का यूथ नाइट का मैसेज है फेथ इन गॉड। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा एक अनोखा विश्वास। आमेन। आपको इतना तो मालूम होगा, विश्वास मतलब एक चीज पर पूरी तरह यकीन करना। आमेन। भले शायद वो चीज हमने देखा ना हो,
शायद वो चीज हमने महसूस किया ना हो, तो भी हमें एक यकीन अंदर से हो जाता है कि वो मुझे मिलेगा। आमेन, हालेलुया। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमें अपने पिता पर विश्वास होता है, भले ही पापा के पास पैसे ना हो, लेकिन जब हम पापा से पूछते हैं पापा एक खिलौना मुझे चाहिए, एक ड्रेस मुझे चाहिए, जब पापा हाँ कहते हैं तो हमें यकीन होता है, भले ही पापा के पास पैसे हो या ना हो, पापा जरूर आमेन वो खिलौना वो कपड़ा मुझे ला कर देंगे। आमेन। क्यों? वैसा प्यार हमने अपने पिता को दिया है, हमारे पिता ने वैसा प्यार हमें दिया है। आमेन, हालेलुया। प्यारे बच्चों, आज उस विश्वास के बारे में हम सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाइबल के द्वारा हमें सिखाया है। आमेन। आज विश्वास का 3 भाग है, उस 3 भाग को मैं आपके बीच बांटना चाहूंगा। आमेन। सबसे पहले क्या है विश्वास, वो हम समझेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 27 to 30, मत्ती सुसमाचार उसके 9 के 27 से वर्स 30 तक हम पढ़े। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। उसके तीसरे वचन को, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आमेन। और उनकी आंखें खुल गईं। आमेन। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे बच्चों, इस वचन में विश्वास के अर्थ को हम समझ सकते हैं। आमेन। 2 अंधे यीशु के पास आए, उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें आशीष करो, आप छू लो ताकि हम देखना शुरू करें। और इस वचन में बच्चों ध्यान देना, यीशु मसीह ने एक सवाल किया उस अंधों से। क्या सवाल किया? क्या तुम यकीन करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? हालेलुया। यीशु ने उनसे पूछा, तुम एक ब्लेसिंग मेरे सामने मांगने आए हो, तुम एक दरवाजा खोलने के लिए मेरे सामने आए हो, लेकिन परमेश्वर का पुत्र के नाते मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वो कर सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नौकरी मिलेगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा मम्मी बीमारी से चंगा हो जाएगा? हालेलुया। अंधों ने कहा, यस प्रभु, हमें यकीन है तू हमें रोशनी देगा। हालेलुया। प्यारे बच्चों, यही है वो विश्वास जो यीशु मसीह हमारे अंदर देखना चाहते हैं। ये वचन एक असली विश्वास के अर्थ को बताती है। यीशु से मांगना वो विश्वास नहीं है, यकीन रखना है कि वो खुदा देगा। आमेन। मांगेंगे तो वो यीशु कुछ महीनों के अंदर देगा, कुछ सालों के अंदर देगा। ये यकीन कर कर हम मांगेंगे तो वो एक सच्चा विश्वास होता है, और उसी विश्वास में प्रभु यीशु हमें ब्लेस करते हैं। आमेन। लेकिन आजकल के समय क्या होता है, कुछ परेशानी देखने के बाद, कुछ तकलीफ देखने के बाद मन में हम यही सोचते हैं कि शायद नहीं मिलेगा तो भी मांग लेता हूं, शायद जॉब नहीं मिलेगा तो भी मांग लेता हूं, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, यीशु ने उनसे क्या पूछा? क्या डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दैट थिंग? यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? आमेन। तो प्यारे बच्चों, विश्वास, असली विश्वास क्या है?
मांगने से पहले, आराधना के पहले, आमेन, दशवांश बोने के पहले, प्रभु का वचन सुनने के पहले एक यकीन से हमें आराधना में बैठना है कि जो मांगेंगे तो यीशु पूरा करेगा। यीशु पूरा करेगा। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट आपका जॉब इंटरव्यू हो, यीशु कर सकता है। इस यकीन में आप बैठोगे तो सच में प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। वो खुदा एक बड़ा ब्लेसिंग आपको देगा। आमेन। तो प्यारे बच्चों, यीशु मसीह इस वचनों से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? एक आशा लेकर हमें यीशु के पास आना है। प्रेज द लॉर्ड। यही है वो विश्वास। अपना मन खाली रखकर या अपने मन में नेगेटिविटी लाकर आप प्रभु का आराधना करेगा तो आपका आराधना शैतान जल्दी बंद कर देगा। आपका जो फेलोशिप है होली स्पिरिट के साथ, वो शैतान जल्दी बंद करेगा। टीचर के लिए एक कुर्सी, पूजा आगे लगाओ। आइए टीचर। आमेन। तो प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचनों में हमें क्या सिखाया? मसीह जीवन में तुम्हें अपने अंदर क्या रखना है? एक होप रखना है। यू हैव टू कीप होप इनसाइड योर थिंकिंग। तुम्हारे सोच में एक आशा लेकर तुम्हें आना है कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है, मेरा यीशु बड़ा जंजीर मेरे जीवन में तोड़ सकता है। आमेन। यीशु ने उस अंधों से क्या पूछा? क्या तुम्हें यकीन है मैं वो कर सकता हूं? अंधों ने कहा यस प्रभु जी। आमेन। कितना अच्छा विश्वास था। उनके जीवन का पहला चमत्कार था। आमेन। सालों से वो बिना कुछ देखे अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि स्नेहा कौन सा ड्रेस पहना, उन्हें पता नहीं था सुष्मिता का स्किन कलर क्या है, उन्हें पता नहीं था जो माँ मुझे खिचड़ी खिलाता है वो उसका कलर क्या है। आमेन। पूरा लाइफ से पहले विश्वास किया कि आज बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहे हैं? प्रभु का बच्चा बनकर चलेगा तो एक आशा लेकर चलना है। एम्प्टीनेस लेकर नहीं चलना। बिना आशा का मसीह जीवन मत गुजारो। बिना कोई आशा लिए प्रभु में जीवन बिताएगा तो वो जीवन किसी काम का नहीं। लेकिन अगर मन में एक आशा लेकर आप प्रभु का जीवन बिता रहा है तो जरूर खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग देंगे। आमेन। इसलिए प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ आशा लेकर प्रभु के मंदिर में आना, कितना भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो। आमेन। साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, दवाइयों के द्वारा देखा जाए तो वो लोग यही कहेंगे कि प्रार्थना से थोड़ी ना कोई अंधा देखना शुरू करेगा। लेकिन उस अंधे व्यक्ति के विश्वास को देखो। उन्होंने एक आशा रखा, जरूर हमारे अंधेपन को यीशु हटाएगा। हालेलुया। तो प्यारे बच्चों, यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं? मन में विश्वास रखना, यानी दैट मीन्स टू वॉक इन द होप। एक आशा लेकर चलना है, एक नौकरी मुझे मिलेगा। हमें एक आशा लेकर संकेंदु इधर आराधना करना है कि जब तक इस दुनिया में मेरा जीवन है, मेरा जीवन खत्म होने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। एक आशा लेकर हमें चलना है कि एक बड़ा नौकरी मुझे मिलेगा। एक आशा लेकर हमें चलना है कि मेरे परिवार के उस रोग को प्रभु खत्म करेगा। हालेलुया। इसलिए बच्चों, अपने मन को शून्य बनाकर इधर नहीं आना। मम्मी बोला है इसलिए आराधना में नहीं बैठना। आमेन। एक्सपीरियंस योरसेल्फ। तुम अपने मन से यीशु मसीह को अनुभव करो। हालेलुया। याद रखना, जब खुदा का दूसरा आगमन होगा वो तेरे साथ तेरे पत्नी को नहीं लेकर जाएंगे,
वो सुष्मिता को लेकर गए, सुष्मिता बोलेगा प्रभु मेरा भाई वीडियो गेम खेल रहा है, उसको भी थोड़ा लेके जाओ। नहीं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमारा लड़ाई हमसे है। हमें अपने शरीर के पापों को दबाकर, अपने जीवन की गंदगी को दबाकर, अपने आप को पवित्र कर कर स्वर्ग के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा है जब प्रभु का आगमन आएगा, जब हम उठाए जाएंगे तो कोई जोड़ियों में प्रभु हमें नहीं उठाएगा। वचन में लिखा है स्वर्ग जाने के बाद उधर कोई भाई बहन नहीं, माँ बाप कोई नहीं, उधर सिर्फ यीशु के बच्चे और हमारा खुदा वहां पर रहेगा। उधर हमारा एक ही काम होगा, उस खुदा की सच्ची आराधना, उस खुदा की सच्ची महिमा। इसलिए यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं एक आशा लेकर यहाँ बैठना है। मेरे पढ़ाई में एक बढ़ोतरी यीशु मसीह देंगे। मैं माँ बाप का अनादर करता हूँ, वो स्वभाव मेरा यीशु हटाएगा। मुझे चोरी करने का स्वभाव है, वो स्वभाव यीशु हटाएगा। आमीन। तो बच्चों एक आशा लेकर आप चलना है। जब मैंने प्रभु का वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा ने बाइबल के वचनों के द्वारा मुझे सिखाया कि प्रभु के बच्चे 7 प्रकार का आशा लेकर अपना मसीह जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा 4 व्हीलर का आशा लेकर आप चल रहे हैं, एक अच्छा नौकरी का आशा लेकर आप चल रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहते हैं कुछ कुछ आशा वो तेरे फायदे के लिए, उसमें यीशु का कोई फायदा नहीं। और प्रभु के वचन में क्या लिखा, यीशु ने हमें चुना ताकि हम उस खुदा के नाम की महिमा कर सके। आमीन। इसका मतलब अगर एक गाड़ी का आशा मन में रखा है, अगर एक अच्छे घर का आशा मन में रखा है, तो पवित्र आत्मा बता रहे मेरा भी कुछ आशा लेकर तुझे चलना होगा। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? प्रभु के कुछ आशाओं को लेकर आप तैयार हैं? आमीन। बहुत कुछ आशाएं हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते 7 पॉइंट्स मुझे मिला है। आगे भी पॉइंट्स मिलेगा तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। आमीन। तो बच्चों 7 प्रकार का आशा मसीही लोग लेकर चलना है, वो पॉइंट्स आप लिखना है। आमीन। आज बहुत कुछ आशा लेकर आप आए हैं, कुछ लोग वो भी आशा ही नहीं लेकर आए हैं। आमीन। मम्मी पीछे से 2 छड़ी दिया तो मैं इधर टपक पड़ा, है ना। लेकिन याद रखना, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट वांट्स यू टू कीप द 7 होप इन योर लाइफ। 7 प्रकार का आशा आपको अपने जीवन में लेकर चलना है, उसे हमेशा मानकर। आमीन। 7 प्रकार का आशा भी मन में रखना है, साथ ही साथ अपना भी कुछ आशा। हालेलुया। ऐसे नहीं कि प्रभु से अपने काम कराएंगे, प्रभु आपका भी काम करके देंगे। आपको भी कुछ चीज पसंद है, उसमें प्रभु का इच्छा है तो जरूर प्रभु यीशु मसीह वो पूरा करेंगे। आमीन। सो व्हाट इज द फर्स्ट होप? पहला आशा क्या है? कौन सा चीज, कौन सा आशा प्रभु के बच्चे रखना है? आमीन। यस, लेट्स ओपन अवर बाइबल। 1 थेसलोनिकल उसके 5 के वर्ड्स 8 के वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 1 थेसलोनिकल चैप्टर 5 वर्स 8। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आमीन। आमीन। प्यारे बच्चों, इस वचन में पवित्र आत्मा एक आशा आपके मन में देना चाहते हैं। आमीन। वो कौन सा आशा है? द होप ऑफ सैल्वेशन। यस, एक उद्धार का आशा। आमीन। उसका मतलब मेरा उद्धार हो चुका है,
सैल्वेशन का मतलब क्या है? आमेन। उद्धार। यीशु ने मुझे बचा लिया है। यीशु नहीं होते तो मेरा जीवन नरक में सड़ जाता, मैं बर्बाद हो जाता। लेकिन 2021 साल पहले वो यीशु ने अपना लहू कालवरी क्रूस पर बहाया, वो लहू मेरे लिए बहाया, और मैं विश्वास करता हूँ उस खुदा ने मुझे बचा लिया है, उस खुदा ने मुझे उद्धार दे दिया है। आमेन। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एक सैल्वेशन का होप लेकर हमें चलना है। आमेन। प्यारे बच्चों, इस वचन को कभी भी आप भूलना नहीं। ये 7 पॉइंट आप स्ट्रांगली अपने मन में रखोगे तो आपका लाइफ होली स्पिरिट बहुत फैबुलस बनाने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल बनाने वाला है। आमेन। यस। तो प्रभु के लोग पहला आशा क्या रखना है? मेरा उद्धार हो चुका है, यीशु ने मुझे बचा लिया है, यीशु ने अपना लहू बहाकर वो मेरे लिए क्या दरवाजा खोल दिया? हेवन का दरवाजा खोल लिया। हालेलुया। यस प्यारे बच्चों, एक सैल्वेशन का आशा लेकर मुझे उद्धार मिल चुका है, वो आशा लेकर आप चलोगे तो प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं। शैतानी शक्तियां हमारे जीवन में खत्म होना शुरू हो जाती। आमेन। अगर एक उद्धार मुझे मिला है, ये आशा हमेशा अपने मन में रखोगे तो यू विल नेवर फील द बॉन्डेज ऑफ सैटन। आप कभी भी शैतान का बंधन महसूस नहीं करोगे। भले ही कोई तंत्र कर रहा हो, भले ही कोई आपको टीस कर रहा हो, भले ही कोई आपको प्रवोक कर रहा हो, then also you will feel कि मुझे बचाने वाला यीशु मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। वो मेरे लहू को शुद्ध करने वाला, मुझे हर चीज से बचाने वाला। आमेन। तो पहला आशा क्या है? सैल्वेशन। आमेन। संकेंदु वो पॉइंट लिखकर बाजू में वचन भी लिखना ब्रैकेट में। ओके। द फर्स्ट होप इज द होप ऑफ सैल्वेशन। एक उद्धार मुझे मिल चुका है। ये आशा कौन लेकर चलना है? प्रभु के बच्चे जो यीशु में है, जो मसीह में है, जिन्होंने यीशु को अपना पर्सनल सेवियर माना है, जो यीशु के अलावा किसी की आराधना नहीं करते, जो यीशु के लिए जीना मरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा की पहली आशा दैट यू हैव टू कीप अ होप ऑफ सैल्वेशन, एक उद्धार का आशा। आमेन। दूसरा, गलातियों के पत्री उसके 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 5। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। आमेन। आमेन। दूसरी आशा क्या है? एनीवन? कोई बोल सकता है दूसरी आशा? होप ऑफ राइचियसनेस। हाँ, देखो संकेंदु ही जवाब देता है, यानी उसको ही अक्ल है, बाकी सबको अक्ल नहीं है। तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स करो। कुछ बच्चे लोग मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं तुम्हारा दोस्त का खून किया हूं। ऐसे मत देखो। हाँ, अच्छे से रिस्पॉन्स करो। अच्छा आदमी हूं मैं, है ना? आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करना है। हम इधर प्रभु का वचन सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे रीति में चलना है। आमेन। व्हाट इज द सेकंड होप? कौन सा आशा है पूनम? दूसरा, धार्मिकता। इंग्लिश में बोलिए, राइचियसनेस। आमेन। द होप ऑफ राइचियसनेस। प्रेज द लॉर्ड। राइचियसनेस का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो सही रास्ता को अनुभव करता है, जो सही रास्ता समझकर उस पर चलने का कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे बच्चों, एक धार्मिकता का आशा आप लेकर चलना है। यानी पवित्र आत्मा चाहते हैं आप अपने जीवन में सही काम करो। आमेन। माँ बाप को 2 सुनाने का मौका मिलेगा, है ना? 500 रुपया फ्रिज के नीचे पड़ा है तो उठाने का इच्छा
ओह, उसमें मजा ही अलग है। मैं भी बहुत पैसा उठाया इसे, हालेलुया। लेकिन प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहे? दूसरा कौन सा आशा लेकर चलना है? एक राइचियस आशा। आमेन। दैट मीन्स पवित्र आत्मा हमें देख रहे, और पवित्र आत्मा हर समय हमें देखकर हमें बताते हैं तू कौन सा आशा लेकर चलना है। धार्मिकता का आशा, यानी तुझे सही काम करना है। याद रखना बच्चों, हमेशा अच्छा दरवाजा, सही दरवाजा ही परमेश्वर नहीं खोलेगा। कभी कभी शैतान का दरवाजा भी आपके सामने आएगा, लेकिन वो समय आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से दरवाजे में जाना है। आमेन। अभी रात के समय 7 बजे 8 बजे अच्छा सीरियल टीवी में आ रहे है ना। शैतान सुष्मिता को बोलेगा, क्यों आराधना में जा रहे थे, थोड़ा सीरियल देखो। तो उसका मतलब क्या है? गलत रास्ता और सही रास्ता दोनों सुष्मिता के सामने आएगा, लेकिन सुष्मिता ने क्या चुना? सुष्मिता ने सही रास्ता चुना। वो इधर आई, वो प्रभु को समय दे रही है, वो प्रभु के वचन को सुन रही है। उसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? एक आशा, यानी एक धार्मिकता का आशा, एक राइचियसनेस का आशा, कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर समय सही रास्ते में चलने का कोशिश करूं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक लड़की मुझे कहा, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, उसका नाम मैं लूंगा नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? वो भैया वो लॉकडाउन में कॉपी पेस्ट करने में, आंसर मोबाइल से कॉपी पेस्ट करने में बहुत हाथ में बहुत दर्द हो गया। मैं बोला बदमाश, निकल यहाँ से। मैं बोला आमेन, है ना, तुम इधर उधर मत देखो, तुम्हारे बारे में। हालेलुया। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी कुछ कुछ चीज हमें छोटा मोटा लगता है कि हम थोड़ा चोरी करेंगे, थोड़ा कॉपी करेंगे। 1-2 लाख थोड़ा ना चोरी किया, 200 रुपया ही चोरी किया, है ना। कभी कभी ऐसा गलत काम का रास्ता भी आता है, लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा ने इस गलातियों के वचन में क्या लिखा? तेरे अंदर धार्मिकता का आशा होना चाहिए। यानी तू घर के अंदर हो, तू चर्च के अंदर हो, तू रोड पर हो, हर समय तुम अपने मन में क्या रखना है? पवित्र आत्मा ने मुझे धार्मिक बनाने का आशा दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी कभी गलती हो जाएगा तो भी तुम जाकर अपने माँ बाप से माफी मांगना है। कभी कभी गलती हो जाएगा तो भी उस टूटे हुए दोस्ती को तुम्हें वापस जोड़ना है। आमेन। हमेशा कोशिश करो कि एक धार्मिक जीवन में जी, कोशिश करो अच्छा काम मैं कर सकूं। ऐसा करोगे तो प्रभु आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। तो पहली आशा क्या है? सैल्वेशन, एक उद्धार का आशा लेकर हमें चलना है कि मेरे यीशु ने मुझे बचा लिया, आगे भी वो खुदा मुझे बचाएगा। दूसरा, धार्मिकता का आशा, द होप ऑफ राइचियसनेस। आमीन, सही काम करने का एक आशा। हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, पापा कभी कभी प्रचार करते हैं कि हमें अपना जीवन पवित्र बनाना, हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है, क्योंकि हम अगर गलत काम करेंगे और हम अगर प्रभु से कुछ मांगेंगे तो प्रभु वो जल्दी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है? धार्मिकता का आशा लेकर चलना है, यानी तुझे सही काम करना है। इसलिए बच्चों, सिर्फ चर्च के अंदर ही अच्छा नहीं होना है। वचन में यह नहीं लिखा यू हैव टू कीप द होप ऑफ राइचियसनेस इन चर्च, नॉट इन होम, ऐसा नहीं लिखा है वचन। तो चाहे आप घर में हो, चाहे आप गार्डन में हो, है ना, चाहे आप गोराई प्रेयर सेंटर में आओ, चाहे आप होटल जाओ, हर जगह कोशिश करो कि मैं कुछ अच्छा काम मेरे जीवन में कर सकूं। आमीन। कभी कभी अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है,
एक बार मैं संकेंदु कंप्यूटर ठीक करने गए तो संकेंदु ने मुझे बोला, भैया इधर का जो शवरमा है बहुत टेस्टी है। पता नहीं मैं गाड़ी घुमा दिया, 2 शवरमा ऑर्डर किया, हम दोनों शवरमा खाया। तभी एक गरीब बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसको भी एक शवरमा ला के दिया। एक बाइट लिया तो 10 गरीब बच्चे और आ गए। मैं उसको बोला चलो भागते हैं। नहीं, सचमुच देखा जाए तो कंप्यूटर ठीक कराने गया था, उसमें ही 2-3 हजार रुपया खर्चा हो गया। तो मेरे जेब में पैसा नहीं था, खिलाने का इच्छा है, लेकिन सही बात है ना, कभी कभी अच्छा काम हो नहीं पाता। मैं भी डर गया, मैं सोचा अरे बाप रे, कभी कभी खिलाना चाहिए, पैसा नहीं देना। हो सके तो एक वड़ा पाव, एक 10 रुपए का फ्रूटी खरीद के दे दो। लेकिन प्यारे बच्चों, दूसरी आशा क्या है? एक अच्छा धार्मिक जीवन। कोशिश करो अच्छा बनने का, कोशिश करो अच्छा काम करने का। भले ही आज गलती हो गया है, अब तो उस गलती को सुधारने का कोशिश करो, उस पाप को सुधारने का कोशिश करो। मैं आपसे कह दूं, पवित्र आत्मा तेरे अंदर ये आशा देखना चाहता है तो जरूर तुझे प्रभु बढ़ाना शुरू करेगा, तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाना शुरू करेगा। हालेलुया। आइए बच्चों, तीसरी आशा क्या है? द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18। तीसरा आशा पवित्र आत्मा क्या रखना चाहते हैं? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमेन। हालेलुया। तीसरी आशा क्या है? यस, वेरी गुड। तीसरी आशा है द होप ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग यानी परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु आपको बुलाते नहीं, यीशु आपको चुनते नहीं तो आज आप इधर नहीं बैठता था, आज मैं इधर प्रचार नहीं करता था। हमको प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना? ताकि हम प्रभु का सेवा कर सके, ताकि हमें प्रभु बढ़ा सके। हालेलुया। बहुत प्रकार का कॉलिंग होता है। एक कॉल जिसमें प्रभु हमें सेवा के लिए बुलाते हैं। आज संकेंदु अच्छा गाना गाया, पवित्र आत्मा ने उसे अच्छा एक वर्शिप लीड करने का कॉल दिया। सुष्मिता कितना भी हारमोनियम लेके प्रैक्टिस करे, वो गा नहीं पाएगा। क्यों? उसको वो कॉलिंग नहीं है। लेकिन जब कुछ अच्छा हिंदी नोट्स लिखने का बारी आएगा तो सुष्मिता अच्छा हिंदी लिखेगा, है ना? संकेंदु बोलेगा उससे भी खतरनाक मैं लिखूंगा। तो सुष्मिता बोला उसका हैंडराइटिंग देख के मुझे चक्कर आ गया, मैं अपने माँ को भूल गया, बाप को भूल गया, है ना? तो देयर इज अ स्पेसिफिक कॉल इन आवर लाइफ। हर व्यक्ति को अलग प्रकार का बुलाहट है। कभी ये नहीं सोचना संकेंदु इतना अच्छा गाता कैसे, उसे मैं बढ़ने नहीं दूंगा, ओह ऐसा सुर कैसे लगाता है, प्रभु मुझे वो गाने के लिए क्यों नहीं दिया। आमेन। कुछ लोग कभी कभी ऐसा दुखी हो जाते हैं, मैं क्यों नहीं प्रचार कर सकता, या मैं क्यों नहीं कीबोर्ड बजा सकता। आमेन। राहुल आज कीबोर्ड बजाया, मुझे भी इच्छा है लेकिन मैं सीख नहीं पा रहे। तो प्यारे बच्चों, याद रखना पवित्र आत्मा ने आप सबके जीवन में अलग अलग बुलाहट दिया है। इसलिए अगर अर्चना कुछ कर सकता है तो वो स्नेहा कितना भी कोशिश करे, शिकांडू वो नहीं कर सकता। पूनम जो कर सकता है वो साक्षी नहीं कर सकता। ने हम सबको स्पेशल बनाया है। आमेन। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी इधर उधर देखकर जलना नहीं, कभी भी इधर उधर देखकर गिल्ट में नहीं रहना कि प्रभु उससे इतना पैसा क्यों, मुझे इतना कम पैसा क्यों। आमेन। प्यारे बच्चों, हम सबको प्रभु ने एक बुलाहट दिया है। कुरिन्थियों के बुक में पौलुस ने कहा हमारा जीवन एक घर के समान है। कलीसिया के लोग एक घर के समान है। शायद साक्षी को प्रभु पंखा बनाया,
आमेन। पूनम को प्रभु वॉशिंग मशीन बनाया, स्नेहा को प्रभु ने एक टेलीविजन बनाया है, आमेन। मैं पूनम के सामने रिमोट दबाएगा तो दूरदर्शन चैनल चालू नहीं होएगा, है ना। या फिर मैं स्नेहा के ऊपर कपड़ा और डिटर्जेंट डालेगा तो कपड़ा नहीं धुलेगा। उसके टीवी में जो सीरियल के लोग हैं वो लोग धुल जाएंगे, लेकिन कपड़ा मैं नहीं धो सकता, है ना। तो टीवी का काम टीवी कर सकता है, वॉशिंग मशीन का काम। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपको प्रभु चुना एक खास बुलाहट के लिए। आप मेरे तरह नहीं बन सकते, मैं आपके तरह नहीं बन सकता। तो तीसरी आशा पवित्र आत्मा क्या दे रहे? द होप ऑफ कॉलिंग। एक आशा मन में रखना है, मुझे यीशु ने बुराई करने के लिए बुलाया है, मुझे यीशु ने गप्पे मारने के लिए बुलाया है, मुझे यीशु ने दूसरों का वड़ा पाव खाने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं करना, है ना। कुछ बच्चे यही सोच रखते हैं कि नीचे जाकर फालूदा खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, यही उनका जीवन का लक्ष्य है। आमेन। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने मन में क्या सोचना है? मुझे यीशु ने एक बुलाहट दिया है, देयर इज अ कॉल। आमेन। संकेंदु के जीवन में कॉल नहीं होता तो वो इधर गाना नहीं गाता था। पवित्र आत्मा ने प्रार्थना के समय मुझे बताया संकेंदु को एक गाना गाने का कॉलिंग है। इसलिए मैंने उसे बोला तू कोशिश करो, कोशिश करो। वो डर रहा था, लेकिन आज देखो अच्छा वो गाना गा रहा है। आमीन। राहुल के अंदर भी कीबोर्ड का कॉलिंग है, गाना गाने का भी कॉलिंग है। मेरे को विश्वास है वो भी अच्छा आराधना लीड करे, है ना। पूनम के अंदर भी है, थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़ा मेहनत करना है, लेकिन एक एक कॉलिंग है आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, है ना। जरूरी नहीं है प्रभु को वर्शिपर लोग ही पसंद है, जरूरी नहीं है प्रभु को कीबोर्ड बजाने वाले ही पसंद है, नहीं। प्रभु को वो पसंद है जो सच्चे मन से यीशु को प्यार करते हैं। हालेलुया। प्यारे बच्चों, आप सच्चे मन से यीशु से प्यार करो। आमीन। भले ही एक पास्टर को आपसे प्यार ना हो, लेकिन यीशु को मुझसे प्यार है तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी लोग आपका निंदा करें, लेकिन खुदा आपका तारीफ कर रहा है तो इससे बड़ा और क्या चीज है? प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ा और क्या चीज है? आमीन। तो तीसरी आशा क्या है? हमें हमेशा मन में यकीन रखना है कि मुझे प्रभु ने कुछ काम के लिए बुलाया है, मुझे प्रभु ने कुछ काम के लिए बुलाया है। आमीन। शायद कमलेश को प्रभु एक नया कलीसिया बनाने के लिए बुलाया होगा। आने वाले दिनों में प्रभु कमलेश को इतना उठाएगा, शायद प्रभु उसे तैयार कर रहे कि एक जगह में एक अच्छा नया चर्च बनाने का एक फाइनेंशियल हेल्प कमलेश करेगा। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आप सबको एक बुलाहट है, हम सबको एक बुलाहट है, वो आप लेके रखना है। और पवित्र आत्मा इस वचन से क्या आशा दे रहे हैं? वो आशा मैंने तुझे दिया है। आमीन। पहला सैल्वेशन, दूसरा राइचियसनेस, तीसरा कॉलिंग। देयर इज अ कॉल इन माय लाइफ। एक बुलाहट है मेरे जीवन में। आमीन। तो प्रेयर के बाद सेल्फी लेना है, तेरा बुलाहट नहीं है ना, सेल्फी ले लो। पैसा दिया है, फोन में सेटिंग है, तो क्यों फिर उस कैमरा में जंग पकड़ना, है ना। लेकिन ये मत सोचना कि मुझे मस्ती करना है या मैं बच्चा हूँ, मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ, ऐसा नहीं। एक बुलाहट है आपके जीवन में। शायद कुछ लोगों को पवित्र आत्मा बात करेगा, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा नहीं बात किया होगा, लेकिन आप उसमें घबराना नहीं। आप अपना लाइफ जीते रहो, मेहनत करते रहो, यीशु आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखना, देयर इज अ कॉल इन योर लाइफ। मिहिर, एक बुलाहट है तेरे जीवन में, यीशु आप सबको संभाल करेगा। मुझे विश्वास है महान महान काम के लिए आपके हाथ को प्रभु इस्तेमाल करेगा, है ना। आमीन। आदित्य के द्वारा, संजना के द्वारा, वो खुशी के द्वारा, वो डेविड के द्वारा प्रभु का बड़ा काम होगा। एंजल के द्वारा प्रभु का बड़ा काम होगा।
एंजल मुझे कहता है पास्टर जी मेरे को हाइट नहीं है, मुझे बहुत दुखी होता है। मैं उसे हमेशा कहता हूँ बेटा तू स्पेशल है ना, तू स्पेशल है। जिराफ जैसा लंबा लड़की लोग से भी 100 गुना प्रभु तुझे उठाएगा, है ना। कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा। ओके, दूसरों का ब्लेसिंग देखकर गिल्ट में नहीं रहना, जलना नहीं। शायद पूजा अच्छा सुर में गाना गाएगा, शायद अर्चना को वो सुर लेने नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे से हम जलना नहीं, एक दूसरे से गिल्ट में नहीं रहना। प्रभु ने हम सबको स्पेशल बनाया है, आमेन। प्रभु ने हम सबको एक स्पेसिफिक काम के लिए तैयार किया है, हालेलुया। यस बच्चों, दूसरा चौथा है द बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 27। कोलोसियों के पत्री उसके पहले के 27 के वचन को हम पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है आमेन। तुम में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। चौथा होप क्या है? चौथा होप वो नहीं है, चौथा होप यही है कि दैट क्राइस्ट इज इनसाइड मी। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे अंदर है, ये एक आशा लेकर आप चलना है। हालेलुया। यस प्यारे बच्चों, जीवन में परेशानी आएगा, आंधी तूफान आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस वचनों में तुझे एक आशा लेकर चलने के लिए बोला है। वो कौन सा आशा है? इस दुनिया को बनाने वाला यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। एक आशा लेकर आप आगे बढ़ोगे तो जरूर आपके जीवन में बंद दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा, वो बड़ा दीवार टूटना शुरू हो जाएगा। आमेन। इस पांचवा आशा क्या है? पहला कुरिन्थियों के 15 का 19वां वचन हम पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आमेन। प्यारे बच्चों, इसमें पांचवा आशा प्रभु क्या बता रहे? द फ्यूचर लाइफ। आमेन। पांचवा आशा हमें क्या सोचना है? वो यही है कि मेरे भविष्य को प्रभु बहुत आशीषित बनाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे बच्चों, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने तुझे एक लेवल के लिए नहीं चुना, है ना। हम वीडियो गेम खेलते हैं या जब हम स्टडीज करते हैं तो हम सालों साल 7th स्टैंडर्ड में नहीं रहेंगे। एक साल के बाद 8th में, 9th में, है ना, डिग्री, फिर प्री डिग्री, उसके बाद लोग कितना सारा डॉक्टरेट स्टडीज करते हैं, एक एक सब्जेक्ट का। कुछ लोग 2 डॉक्टरेट, 3 डॉक्टरेट, जितना पढ़ाई करना है कर सकते हैं, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता। ऐसे इंसान क्या करता है? अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाता है। उसी तरह बच्चों, पवित्र आत्मा आपको एक लेवल पे नहीं खड़ा करना चाहता। इस वचन में लिखा है तुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है। और क्या सोचना है? कि मेरा यीशु मेरे फ्यूचर को आशीषित करेगा। हालेलुया। आज मेरा फैमिली भाड़े पे है, लेकिन आने वाले दिनों में एक खुद का घर मेरा यीशु मुझे देगा। हालेलुया। आज एक छोटा नौकरी है, लेकिन आने वाले दिनों में लाखों का नौकरी मेरे जीवन में यीशु लेकर आएगा। हालेलुया। आज शायद थोड़ा ही पवित्रता ही मेरे अंदर है, आने वाले दिनों में और पवित्रता से और अग्नि अभिषेक से पवित्र आत्मा मुझे भरेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने भविष्य का भी एक आशा लेकर आप प्रभु का आराधना करना है। जिस खुदा का नाम लेकर मैं हाथ उठा रहा हूं, जिस खुदा की वचन सुनकर मैं आराधना कर रहा हूं, वो खुदा मेरे भविष्य को बहुताई से और अनुग्रह से बदलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
यस बच्चों, हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य को बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। तो पांचवी आशा क्या है? आमेन, द होप ऑफ फ्यूचर लाइफ, यानी वो यीशु जो हमारे भविष्य को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर लोग नुकसान देखकर भविष्य डिसाइड कर लेता है, तकलीफ देखकर फ्यूचर डिसाइड कर लेता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। लेकिन इस वचन में पवित्र आत्मा क्या बोल रहे? तू आशा रख, मेरा यीशु मेरे भविष्य को बदलेगा, मेरा यीशु मेरे फ्यूचर को बदलेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। छठवां आशा क्या है बच्चों? द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 वर्स 13, तीतुस के पत्री उसके 2 के 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की आमीन। बाट जोते रहे। आमीन। तो बच्चों, छठवां आशा क्या है? द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा आगमन। बाइबल में आप रेवलेशन के पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में यूहन्ना ने क्या लिखा है कि हमारा यीशु कभी भी आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हमारा यीशु कभी भी आ सकता है। वो एक आशा लेकर हम चलना है प्यारे बच्चों। आमीन, हालेलुया। भले ही शायद एक अमीर घर में तू पैदा ना हुआ हो, भले ही शायद एक अच्छा स्टडीज तेरे जीवन में तुझे ना मिला हो, लेकिन तू एक आशा लेकर चलना है, मेरा यीशु जल्दी आने वाला है और मुझे स्वर्ग ले जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो याद रखना, ये मसीह जीवन का सबसे प्रेशियस होप है। ये मसीह जीवन का सबसे कीमती आशा है कि हमारा यीशु दोबारा आने जा रहा है। और वचन में क्या लिखा है? वो यीशु एक चोर के समान आएंगे। आमीन। चोर कभी बताकर नहीं आता है ना, कभी भी चोरी हो जाता। मैं अभी किसी के घर में जाऊंगा तो मैं फोन करूंगा, 1 घंटे में मैं आ रहे, मैं बोलूंगा। लेकिन प्रभु का आगमन प्यारे बच्चों बताकर नहीं आएंगे। प्रभु कभी भी आ सकते। और प्रभु आने के बाद क्या होगा? वो यीशु हमारे जीवन में न्याय करेंगे और जो जिसे पाप पसंद है उन लोगों को प्रभु इधर ही छोड़ेंगे, और जो यीशु को सच्चा प्यार करते हैं उन्हें प्रभु लेकर जाएंगे। हालेलुया। प्यारे बच्चों, एक चोर के समान यीशु का आगमन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है कि अगर प्रभु ने स्नेहा से कहा मैं 2 महीने में आऊंगा, तो स्नेहा सब है ना, सब एकदम डिसिप्लिन हो जाएगा 2 महीने। और यीशु बोलेगा देखो बदमाश, चैप्टर है स्नेहा। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा जो पवित्र जीवन है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए तुम नहीं बिताना है। यीशु से सच्चा प्यार है तो हर समय तो अपने जीवन को अच्छा बनाएगा, पवित्र बनाएगा। इसलिए याद रखना, हमारा छठवां आशा क्या है? हमारा यीशु जल्दी आने वाला है। कभी भी यीशु आ सकते, शायद आज 2 घंटे के बाद यीशु आ सकते। हमें शायद शॉपिंग को दुबई जाना होगा 2 महीने में, उसके पहले यीशु आ सकते। अरे दुबई जाना, हमें कभी भी प्रभु का अगुवाई हो सकता है। और उस अगुवाई के लिए बच्चों हम सब तैयार रहना है। बाइबल में लिखा है कौन उठाए जाएंगे? जो यीशु के वचन में चलते हैं, जो गंदगी से दूर रहते हैं। हालेलुया। इसलिए बच्चों हमेशा अपने जीवन को आप अच्छा बनाना है। जो व्यक्ति इस दूसरे आगमन के बारे में सोचता है ना, वो कभी भी संसार में डूबता नहीं।
बहुत बार ब्रायन संकेंदु ने मुझे कहा, बाहर के लोगों ने फिल्म का गाना बजाने के लिए, संसारिक म्यूजिक बजाने के लिए संकेंदु को बुलाया, ब्रायन को बुलाया, लेकिन ब्रायन ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे बच्चों, हम प्रभु के राह में चलेंगे तो प्रभु हमें लेकर जाएंगे, उस खुदा के स्वर्ग राज्य में लेकर जाएंगे। इसलिए प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए याद रखना, कुछ भी गंदगी, कुछ भी पाप जीवन में है तो उस पाप को हम कम करना है, हम क्षमा मांगना। आमेन, हालेलुया। आखिरी आशा क्या है? पहला पत्रस उसके पहले वचन के पहले अध्याय के 3 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के कुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। That means the hope of eternal life. हालेलुया, अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। बाइबल में बहुत मशहूर वचन है, जॉन 3:16, है ना। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उस खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि जो भी उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में एक अनंत जीवन यीशु मसीह ने तैयार किया। दैट मीन्स हम नहीं मरेगा, हमारा मृत्यु नहीं है। भले ही शायद 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में हमारा देहांत हो जाए, लेकिन इस पृथ्वी पर जब हमारा आंख बंद होगा तो कुछ सेकंड में हमारा आंख स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। दैट मीन्स देयर इज नो डेथ इन क्रिश्चियन लाइफ। ओह, कितना बड़ा रेवलेशन है ना। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। जो दोस्त लोग प्रभु में नहीं हो उनको बोलो, तेरा तो छुट्टी होने वाला है, तेरा आत्मा तो भटकने वाला है ना, लेकिन मेरे आत्मा को एक स्थान मिलेगा। यस प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति के जीवन में यीशु नहीं है ना, उसकी मृत्यु के बाद उसका आत्मा भटकेगा। लेकिन गॉड इज गिविंग अ कंफर्मेशन इन आवर लाइफ। अगर तेरे जीवन में यीशु है तो तेरे मृत्यु के बाद तेरा आत्मा भटकेगा नहीं, तेरा आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हालेलुया। बाइबल अनंत जीवन के बारे में बहुत वचन बताती। वो अनंत जीवन का प्रचार करेगा तो बहुत कम समय, बहुत कम है, महीना लगेगा, लेकिन याद रखना, देयर इज अ हेवन गॉड हैज प्रिपेयर्ड इन अवर लाइफ। एक स्वर्ग का राज प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है ना। हम इंस्टाग्राम में देखते हैं वो कम टू दुबई, है ना, दुबई में आएगा एंजॉय। कम टू दुबई बोला तो संकेंदु बोल रहे हैं आमेन। ओ, लेकिन याद अगर दुबई से भी डबल ब्यूटीफुल है हमारा हेवनली किंगडम। हालेलुया, हालेलुया। सब हमारा हेवन का टाइल्स सब सोने का है ना। चुटकी बजाएगा तो मैकडी का बर्गर मुंह में, है ना, प्लेट में भी नहीं आएगा, स्वर्गदूत सीधा संकेंदु का मुंह में भर देंगे ना। इतना ब्यूटीफुल है हमारा यीशु का स्वर्ग राज। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे बच्चों, एक अनंत जीवन का आशा लेकर हम चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी मेरे रिश्तेदार में या कलीसिया में कहाँ भी हमारे मसीह लोगों का जब देहांत होता है तो भले ही संसारिक लोगों के मन में एक दुखी होता है कि वो हमें छोड़कर गया, लेकिन मेरे अंदर एक आनंद होता है। क्यों सुष्मिता? मैं विश्वास करता हूँ वो व्यक्ति अभी यीशु के गोद में चला गया। हालेलुया। उससे बेस्ट जगह और किधर है? इधर दिमाग खराब है ना, सबको सहना पड़ता है। मेरा शादी हो गया, पूजा को मैं सहता हूँ, पूजा मुझे सहता है ना, हम दानू को सहता है।
एक सिस्टर मुझे बोला अभी अगला बेबी कब होगा। जब ये बात चल रहा था तो डानू मुझे देख रही थी ऐसे। मैं बोला बाप रे, इसका मस्ती सब देखेगा तो। मैं वो लेडी को बोला भाग जाओ यहाँ से। हालेलुया। ये दुनिया में बाइबल में क्या लिखा है, दुनिया में शांति नहीं मिले। मेरे पापा ने एक बहुत सुंदर बात कहा, मैं हंसता नहीं हूं, क्यों? बाद में रोना पड़ेगा। ये दुनिया में बहुत दुख है। आज शायद सुष्मिता को 2 लाख का लॉटरी लगेगा, है ना, बहुत खुशी मिलेगा। अगले दिन स्कूटी का एक्सीडेंट होगा, फिर वो 2 लाख रुपए स्कूटी में खर्चा देना पड़ेगा। जीवन, लाइफ ऐसा है ना, टेंशन मत ले। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारा लाइफ ऐसा है, कुछ भी हो सकता है हमारे लाइफ में, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। ये दुनिया में शांति नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, बाइबल में लिखा स्वर्ग में आंसू ही बहता नहीं है, स्वर्ग में दर्द नाम का चीज नहीं है, स्वर्ग में डिप्रेशन नाम का चीज नहीं है, स्वर्ग में खुशियां ही खुशियां है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल बताती है प्रभु के बच्चों के लिए यीशु ने वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग राज तैयार किया। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू डाई, हम नहीं मरेंगे। प्रभु ने हमें अनंत के लिए तैयार किया। हालेलुया। लेकिन याद रखना, उस अनंत जीवन फुकट में नहीं मिलेगा, है ना, वो अनंत जीवन फुकट में नहीं मिलेगा। वो अनंत जीवन पाना है तो हमें धार्मिकता में चलना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू वॉक इन द राइट पाथ, हमें अच्छे राह में चलना पड़ेगा। हालेलुया। यही तो वो चैलेंज है बच्चों। ये दुनिया में अच्छे राह में चलने वाला सबसे ज्यादा रोता है ना। मैं जब कॉलेज में था, मेरे दोस्त लोग सिगरेट देते थे मुझे, एल्विन स्मोक करो। मैं बोलता था मैं नहीं करूंगा, मैं क्रिश्चियन हूं। तो मेरे दोस्त लोग फिर मुझसे बातें ही नहीं करते थे। वो लोग आपस में ग्रुप बनाकर नशा करते थे, गप्पे मारते थे और मुझे अकेला करते थे। आमीन। इस समय शैतान कभी कभी बोलेगा कि तू अल्कोहल कंज्यूम करो, तुम स्मोकिंग करो उनसे दोस्ती करने के लिए। शैतान बोलेगा इस दुनिया का तुम आनंद उठाओ उनके साथ शामिल होने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें सही राह में चलना है। क्यों? हमें प्रभु ने एक आनंद का जगह तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। पूनम, इधर एक छोटा फ्लैट होगा तेरे को, वो लेकिन स्वर्ग में एक एंटीलिया अंबानी का एक बड़ा बंगला रहेगा तेरे जीवन। यस, बाइबल में लिखा है, बहुत लग्जरी तरीके का है हेवनली सोर्स। वो एक आशा हमें रखना है कि मेरा यीशु ने वो एक अनंत जीवन में बहुत कुछ खास मेरे लिए तैयार किया। आमीन। प्रभु का आगमन होगा तो हमारा जीवन धार्मिक है तो हम स्वर्ग में जाएंगे। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब हमारा समय इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, हम अनंत जीवन जाएंगे। यस प्यारे बच्चों, इसलिए याद रखना, जो प्रभु में नहीं है, भले ही दुनियादारी में होगा, नशा करता होगा, 2 नंबर काम कर कर अच्छा पैसा कमाता होगा, अरे उसका लाइफ तो मजे में, ऐसा नहीं सोचना। उससे ज्यादा ब्लेसेड लाइफ है हमारा। भले ही शायद आधा रोटी है खाने को, तो भी उस व्यक्ति से जिसके पास 10 रोटी है, 10 गाड़ी है, उससे भी आशीषित जीवन है हमारा। क्यों? हमारे लिए एक स्वर्ग राज यीशु तैयार किया। इसके जीवन में यीशु नहीं, उसका जीवन 80 साल 90 साल ही होगा, फिर उसका आत्मा भटकेगा। लेकिन हमारा आत्मा भटकने वाला नहीं है। हमारे आत्मा को स्थिर करने के लिए यीशु एक जगह तैयार करके रखा है। हालेलुया। That is the hope we have to believe and we have to walk into. वो आशा लेकर बच्चों अब चलना है। हालेलुया। पहला आशा क्या है? वो यीशु ने मुझे उद्धार दिया। दूसरा आशा क्या है? एक धार्मिकता लेकर चलना है। तीसरा आशा, यीशु ने मुझे एक मकसद के लिए बुलाया है। There is a work in my life that God will do. चौथा आशा क्या है? यीशु मेरे अंदर है, मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई बंधन में डाल नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। यीशु मेरे अंदर है। पांचवा क्या है? मेरे फ्यूचर को यीशु बेटर करेगा, मेरे फ्यूचर को यीशु आशीषित करेगा। आमीन। छठवा आशा क्या है? That our Jesus Christ is coming soon.
There is a second coming of our Jesus Christ. कल या परसों ही पूजा ने प्रार्थना कर कर मुझसे कहा, मैंने एक सपना देखा, दर्शन देखा कि यीशु का आगमन आ चुका है। वो सब आत्माओं को, अच्छे धार्मिक आत्माओं को प्रभु उठा रहे। सच में उसका वो बात सुना तो वो मुझे गूस बम्स आ गए। आमेन। इस प्यारे लोगों, हम प्रार्थना करना है, कितना भी आप अच्छे रहो, लेकिन याद रखना आपको प्रभु अपनी इच्छा से उठाएगा। इसलिए अपने आप को हम नम्र रखना है, सारे पापों का क्षमा मांगकर उस खुदा के राह में चलना है। आमेन। और सातवां आशा क्या है? अनंत जीवन। यीशु ने हमारे लिए एक हेवन तैयार किया है। यीशु ने हमारे लिए एक स्वर्ग राज्य तैयार किया है। आमेन। पापा साइकिल दे या ना दे, मेरे यीशु ने कावासाकी रेडी किया है मेरे, है ना। बच्चों को समझ में आ गए, यही बात है। तो ये 7 प्रकार का आशा, और भी आशा है बाइबल में, शायद 12 है या 15 है, लेकिन वचन पढ़ते पढ़ते मुझे इतना मिला, मैं ये वचन आपसे बांट रहा हूं। ये 7 प्रकार का आशा बच्चों हमेशा आज से आप लेकर चलो। जरूर आपके जीवन में भी कुछ आशा होगा। पिछले बार पूनम मुझसे कहा, ब्रदर मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने का बहुत इच्छा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे हर प्रकार, बहुत प्रकार का आशा हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। आपके जीवन में भी क्रिकेटर बनने का आशा है ना, साक्षी को डॉक्टर बनने का आशा, कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं साक्षी डॉक्टर बनने के साथ साथ ये 7 आशा लेकर तू चलना है। पवित्र आत्मा तुझे इसके लिए तैयार की। There is a salvation in me, there is Christ in me, there is a call in me. Hallelujah. ओके बच्चों, आगे का वचन अगले यूथ नाइट प्रेयर में हम सीखेंगे। अभी समय समाप्त हुआ। यस, हमारा विषय था विश्वास, आशा। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास का असली अर्थ पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहते। जिस तरह यीशु मसीह ने उस 2 अंधे बच्चों से पूछा, डू यू बिलीव दैट आई कैन हील यू? आमीन। यही वो 7 प्रकार का आशा है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा पूनम से कह रहे, तुझे ये 7 आशा लेकर चलना। अगर तुझे यीशु से प्यार है, आर यू बिलीविंग दैट आई एम द ट्रू क्रिश्चियन, तो मसीह लोगों को ये 7 आशा लेकर चलना। हालेलुया। आइए बच्चों, आप अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे एंड लेट्स ब्लेस दिस प्रेयर सर्विस। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जितने बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं, प्रभु आपके वचन ने हमें छुआ, हम विश्वास करते हैं। प्रभु हम यहाँ सीखने आए। यहाँ कोई बेस्ट नहीं है, यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं है। प्रभु हम सब सिनर हैं। पौलोस जो इतना ज्ञानी था, पौलोस जो इतना इंटेलिजेंट था, वो कहने लगा सबसे बड़ा पापी मैं हूं। Yes Lord, I want to surrender like the mighty man of God Paul. पौलुस के समान मुझे अपने आप को समर्पित करना। आज प्रभु एक विश्वास को मैंने सीखा, वो मेरा यीशु कर सकता है। वो आज ये 7 प्रकार का आशा पवित्र आत्मा हमारे मन में डालना चाहता है। यस, एक उद्धार का आशा लेकर मैं चलूंगा। वो पहले अपने मन को शून्य में रखकर चलता था। कभी कभी शैतान मेरे थिंकिंग को ब्रेक करता था, और लेकिन प्रभु जी ये 7 प्रकार का आशा आज से पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रदान करने जा रहा है। ये आशा मेरे अंदर होली स्पिरिट फिट कर दिया है। इस आशा को शैतान अभी भुला नहीं सकता, इस आशा को शैतान दूर नहीं कर सकता। ओ ये आशा मेरे अंदर आएगी तो आज से और भी माइटी पावरफुली मेरा जीवन बदलने वाला है, मेरा लाइफ बदलने वाला है, मेरा सोच बदलने वाला है, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द बदलने वाला है, मेरा थिंकिंग बदलने वाला है। ओ जीसस,
रबो शखारी धना गबरा शखा डबना रबो शठना प्रभु छूले ये 7 आशाएं हमारे अंदर आप लेकर आइए प्रभु जी। वो एक उद्धार का आशा, वो एक धार्मिकता का आशा, एक बुलाहट का आशा। वो मुझे प्रभु ने एक मकसद के लिए चुना है। वो आई एम नॉट अ वेस्ट, वो आई एम नॉट अ वीक पर्सन। God has a call in my life. God has a purpose in my life. एक बुलाहट है मेरे जीवन में। वो भले ही मेरे दोस्त कहने दो तू यूजलेस है, भले ही मेरे अपने कहने दो तू किसी काम का नहीं, लेकिन स्वर्ग तेरे ऊपर आवाज दे रहा है, मैंने तुझे चुना है, एक काम के लिए मैं तुझे तैयार किया है। इस पृथ्वी पर तू वो काम करेगा, तेरा परिवार वो काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, ये 7 आशाएं हमारे जीवन में देंगे। आज से इस वचन का हम पालन करेंगे प्रभु। हम अपने बुद्धि से आए, वो हमें लगा एक इंजीनियर बनना ही मेरा मकसद है, लेकिन पवित्र आत्मा उससे भी बढ़कर मुझे बनाना चाहता है, उससे भी बढ़कर मुझे शक्तियां देना चाहता है। यस प्रभु जी, आज इस आराधना से हमें इस लाइव में देखने वाले लोगों को भी आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। वो ये 7 आशाओं का अभिषेक वो इनके जीवन में प्रभु आप लेकर आए। सारा आदर महिमा इस प्रार्थना से आपको देते। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, हर एक के ऊपर वो ये नया अभिषेक तू लेकर, वो प्रभु इस लाइव में देखने वाले लोगों को इस नए अभिषेक से तू छू। Submitting everything in your mighty hand, my Lord. Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Evan Pastor, to giving this wonderful word of God. Now end this youth meeting with short prayer. Then I will ask Sister Khushi to come up and pray. Close your eyes. Pray thankfulness prayer. Father, we want to thank you for being the throughout this meeting. Your presence has been in this place from the start to end, and we want to say thank you. Lord, as we leave this place, let's go out there with the salt and light. May we put into practice what we have discussed and learned. Lord, where we degrade and cite things that do not bring the glory to your name, we ask forgive us in Jesus' name, believe and pray.